My lovely students, welcome to Authological. In this session, we're doing some more quantitative aptitude questions for XGMT examination. Start करते हैं session, and if you're not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel and also join the Telegram channel Methodological. So, एक not so का साइन हुआ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. The sum of the ages of Rahman and Hamza at present is 54 years. 5 years ago, the product of their ages was 6 times the age of Rahman at that time. How many years from now will Rahman's age be a perfect square? Whether that will be 5 years, 6 years, 4 years, or 9 years. Sum of the ages of Rahman and Hamza at present is 54 years. So if Rahman's age is equal to R and Hamza's age is equal to H, so R plus H, that is equal to 54 at present. Then 5 years ago, एज ऑफ रहमान क्या होगा? 5 years लेसर हो जाएगा और हमजा का एज भी 5 years लेसर हो जाएगा. तो एज ऑफ रहमान 5 years ago will be R minus 5 and that of Hamza 5 years ago will be H minus 5. And 5 years ago, the product of their ages was 6 times the age of Rahman at that time. Product of their ages was 6 times the age of Rahman. यानी कि R minus 5 into H minus 5, this is their product and this will be 6 times the age of Rahman. तो क्या ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि अल्टीमेटली बेसिकली H minus 5 is equal to 6 एज ऑफ रहमान एट दैट टाइम. तो H minus 5 is equal to 6 यानी कि H is equal to 11 आ गया. एंड इफ H is equal to 11, so R will be equal to 43 because sum 54 है. और फिर क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ विल रहमान्स एज बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 43 अभी है एट प्रेजेंट. Perfect square it will be after 6 years. 43 plus 6 is equal to 49. So option B will be the answer. Okay. Straightforward question. Clear? Next one. The number of votes not cast for the Praja Party increased by 25% in the national general election over those not cast for it in the previous assembly polls, and the Praja Party lost by a majority twice as large as that by which it had won the assembly polls. If a total 2,60,000 people voted each time, how many voted for the Praja Party in the assembly elections? Now इस क्वेश्चन में एक हमें assumption लेना पड़ेगा that there are total 2 parties. 2 parties के बीच का कॉन्टेस्ट है और तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है. सो ये assumption हमें assume करना पड़ेगा कि there are 2 parties. तो if Praja Party is getting not getting some votes, तो those votes will be going to the other party. ठीक है. So Praja Party votes not cast for the Praja Party increased by 25% in the national general elections. ठीक है. कौन सा इलेक्शन जीता है प्रजा पार्टी ने? प्रजा पार्टी हैज वॉन द असेंबली इलेक्शंस, इजंट इट सो? एंड देन इट लॉस्ट द नेशनल जनरल इलेक्शंस. तो या तो ऑप्शन से चले जाओ बिकॉज टोटल इज 2,60,000 और ऑप्शन हमें गिवन है. एंड क्वेश्चन आस्किंग हाउ मेनी वोटेड फॉर द प्रजा पार्टी इन द असेंबली इलेक्शन. तो असेंबली इलेक्शन में तो प्रजा पार्टी जीती है और अगर जीती है तो 50% ज्यादा वोट्स मिले होंगे. भाई प्रजा पार्टी हैज वॉन असेंबली इलेक्शंस एंड देयर आर ओनली 2 parties, so definitely प्रजा पार्टी must have received more than 50% votes. So number of votes won by Praja Party in assembly elections will be greater than 1,30,000. And hence option A cannot be the answer, option D cannot be the answer. तो या तो ऑप्शन B आंसर होगा या फिर C आंसर होगा. तो किसी भी एक को ले लेते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन से जाते हैं. तो 2,60,000 टोटल वोट्स हैं, 260K. सो इफ प्रजा पार्टी वॉन रिसीव्ड 150K वोट्स, तो इट मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड 110K वोट्स. अब ये वोट्स दूसरी पार्टी को मिले होंगे. ठीक है. अकॉर्डिंगली फिर 25% का इंक्रीज करोगे इसमें प्लस 25%, तो 50% इज 55,000, 27,500. तो प्लस 27,500 दैट विल बी वोट्स नॉट रिसीव्ड बाय प्रजा पार्टी. तो दैट विल बी 1,37,500 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा इन द वोट्स इट रिसीव्ड. तो 150 माइनस 27,500, तो 122,500. अब फिर सेकंड कंडीशन हमारा क्या है कि इन द जनरल इलेक्शन, ओके कहाँ गया कंडीशन हमारा, प्रजा पार्टी लॉस्ट बाय अ मेजॉरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज बाय विच इट हैड वॉन. तो जितने वोट से जीती थी उससे डबल वोट से हारी है. ठीक है. इजंट इट सो? द विक्ट्री मार्जिन वाज हाफ दैट ऑफ द लॉस मार्जिन. तो फर्स्ट केस में मार्जिन इज 40,000 एंड सेकंड केस में दैट इज इक्वल टू 15,000. तो रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा, यानी कि 150,000 विल नॉट बी द आंसर एंड हेंस आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी. ठीक है. बिकॉज बाकी ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है. सो डेफिनेटली द आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी. अदरवाइज हम टेस्ट भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है क्योंकि पता है कि ऑप्शन बचा है. सो दैट मस्ट बी द आंसर. तो 260,000, तो 140,000 मस्ट बी द वोट्स रिसीव्ड बाय प्रजा पार्टी. तो 120,000 आर द वोट्स नॉट रिसीव्ड बाय प्रजा पार्टी. ठीक है. नॉट रिसीव्ड बाय प्रजा पार्टी एंड हेंस अकॉर्डिंगली 120,000 प्लस 25% विच विल बी 30,000. तो 150,000 विल बी वोट्स
not received by Praja Party, and 110,000 will be votes received by Praja Party in national general elections. दिस इज असेंबली इलेक्शन एंड नेशनल जनरल इलेक्शंस. ठीक है, यहाँ भी यही स्टोरी था, जस्ट इन केस. ओके, सो फर्स्ट केस में विक्ट्री मार्जिन वॉज 20,000 एंड सेकंड केस में द लॉस मार्जिन इज 40,000. तो यस, कंडीशंस आर मैचिंग. तो डेफिनेटली हमारा आंसर विल बी 140,000 मस्ट बी द वोट्स रिसीव्ड बाय प्रजा पार्टी इन द असेंबली इलेक्शंस. ओके, क्लियर है. तो ये तो हो गया, हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया. अदरवाइज कैसे करते हैं, तो अदरवाइज भी ध्यान से समझ रहे हैं. रेशियो को यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो, प्रजा पार्टी votes received by it and votes not received by it. Votes in favor and vote against. In favor and votes against. Okay, first case में it must have received some votes and must not have received some, but हमें condition कहाँ पे given है. Condition is given that 25% increase is there in number of votes not cast for Praja Party. 25% basically implies 1/4. So if initially votes not cast or votes cast against it was equal to 4x, so in national general election that must be equal to 5x. ठीक है, assembly elections में if that was equal to votes not cast for equal to 4x, not cast votes not cast to not cast for Praja Party or votes against Praja Party, if that was equal to 4x, तो in national elections that was equal to 5x. ओके, और फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अब गैप कितना है 4x और 5x में, 1x का गैप है. बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट बाय अ मेजॉरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज दैट बाय विच इट हैड वॉन. यानी कि जो गैप है हमारा वो कितना हो गया, गैप ऑफ मार्जिन. मार्जिन हमारा कितना हो गया, मार्जिन इज बेसिकली 3x. इजंट इट सो? मार्जिन जो हमारा है विक्ट्री का, दैट बिकेम इक्वल टू 3x. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो जो मार्जिन है हमारा दैट बिकेम इक्वल टू 3x. और वोट्स हमारे चेंज हुए हैं. अभी जो 5x हुआ है 4x से, ये कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा 1x कहाँ से आया, ये आया होगा वोट्स इन फेवर से. Isn't it so? वोट्स इन फेवर से आया होगा. बट यहाँ पे गैप हमारा x का आया है. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट केस में इफ विक्ट्री मार्जिन वॉज इक्वल टू सम वैल्यू, देन लॉस मार्जिन इन द सेकेंड केस इज 2 times ऑफ दैट. ठीक है, सो टोटल ऑफ दीज टू मस्ट बी इक्वल टू 3x. ठीक है, अगर ये x है, x तो पहले हमने मान लिया. इफ दिस इज y, सो इफ दिस इज 2y, तो टोटल विल बी 3y. तो हमें गैप को 3 यूनिट्स करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, अभी तो गैप हमारा x आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ वैल्यूज. So first value becomes 12x, second value becomes 15x. And when the votes against was equal to 12x, तो मार्जिन हमारा कितना था, x का मार्जिन था. यानी कि it won by x units because total गैप हमारा 3x है. तो 12x is basically x का मार्जिन था, यानी कि नंबर ऑफ, ठीक है, x का मार्जिन था. और दूसरे वाले केस में क्या है, 2x का मार्जिन है. तो मिडिल वैल्यू क्या आ रहा है, मिडिल ग्राउंड क्या आ रहा है, 13x आ रहा है. ठीक है, सो इफ फॉर एग्जांपल टोटल वोट्स आर इक्वल टू 14x, टोटल वोट्स आर इक्वल टू 13x, हाफ आ रहा है, हाफ द वैल्यू. तो टोटल वोट्स अगर हमारे 26x, डबल ऑफ दैट आ जाएगा. आउट ऑफ दैट अगर पहले केस में 12x आर वोटेड अगेंस्ट, तो 14x मस्ट हैव वोटेड इन फेवर. एंड सेकंड केस में दैट विल बी 11x. क्योंकि 12x था हमारा, तो मार्जिन x का था, तो 12x प्लस x 13x. सिमिलरली सेकंड केस में 2x का मार्जिन है, 15x. जब वोटेड अगेंस्ट हुआ है तो लॉस हुआ है 2x का. ठीक है, 15x माइनस 12x 13x. ठीक है, तो 13x इज द 50% और द मेजॉरिटी मार्क. तो टोटल वोट्स विल बी 13x का डबल, दैट विल बी 26x इंटू 2. और टोटल वोट्स 26x है, तो 14x मस्ट बी वोटेड इन फेवर इन द फर्स्ट केस, 12x मस्ट हैव वोटेड अगेंस्ट, और सेकंड केस में दैट विल बी 11x एंड 15x. तो टोटल वोट्स आर इक्वल टू 26x. और वो गिवन है हमें 2,60,000. एंड hence 1,40,000 must have voted in assembly elections in favor of Praja Party. So that is how you will be solving this question. This was a good question. ठीक है, तो अगर ये बेसिक्स नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन फंसाएगा, परेशान करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, a square and a circle have equal perimeter. If T, S and C denote the areas of the triangle, area of the square and area of the circle respectively, then which one of the following is correct? तो यानी कि हमारा एरियाज का रिलेशनशिप क्या होगा अगर हमें पेरीमीटर इक्वल गिवन है फॉर अ ट्रायंगल, फॉर अ स्क्वायर एंड अ सर्कल. सो इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो अगर साइड लेंथ हमारा ट्रायंगल का x है तो पेरीमीटर विल बी 3x. फॉर अ स्क्वायर, इफ साइड लेंथ इज इक्वल टू a, पेरीमीटर विल बी 4a.
एंड फॉर अ ट्राइंगल, जैसे टी एस और सी तो एरियाज थे, तो इनको तो नहीं लिख सकते पेरीमीटर। So in case perimeter of triangle, that will be 3x. Perimeter of square, it will be equal to 4a. And perimeter of circle, if radius is r, will be equal to 2 pi r. ठीक है, एक अप्रोच तो ये है ऐसे केसेस में कि तुम तीनों का एलसीएम लेके, यानी कि तीनों वैल्यूज को ऐसा मान के कि सो दैट दैट इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज बाय 4 एज वेल एज बाय 2 पाई, हम पेरीमीटर एज्यूम कर लें सो दैट पेरीमीटर सेम हो जाए। तो 3 एंड 4 एंड 2 पाई का मल्टीपल चाहिए हमको। ठीक है, तो दैट कैन बी 12 पाई इफ वी एज्यूम टोटल पेरीमीटर इन ईच केस इक्वल टू 12 पाई। Now 12 पाई इज डिविजिबल बाई 3, तो वहाँ से हमें ट्राइंगल का साइड भी मिल जाएगा, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, तो स्क्वायर का साइड भी मिल जाएगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 पाई आर, तो हमें यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल भी मिल जाएगा। सो ऑल केसेज आर डन। तो फर्स्ट केस ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। फॉर अ ट्राइंगल साइड लेंथ विल बी इक्वल टू एक्स विल बी इक्वल टू 4 पाई, और अगर साइड लेंथ हमारा 4 पाई है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, रूट 3 बाई 4 इंटू 4 पाई होल स्क्वायर, 4 पाई होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखना 4 पाई स्क्वायर मत लिख देना, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 रूट 3 पाई स्क्वायर। Similarly, for a square, side length A will be equal to 12 pi by 4, which will be equal to 3 pi. So area will be equal to area which is equal to x, s is equal to 3 pi whole square, which will be equal to 9 pi square. And for circle, radius will be equal to 2 pi r is equal to 12 pi, so radius is equal to 6. So area of the circle C will be equal to pi r square, pi into 6 square, which will be equal to 36 pi. Now we have to compare these two, and pi is roughly equal to 3.14. So pi square 3.14 into 3.14, which is roughly equal to 9.8, 9.85. ठीक है, सो पाई स्क्वायर इज रफली 9.85। 10 भी एज्यूम कर सकते हो, अगर वैल्यूज हमारी बहुत क्लोज नहीं है तो 10 भी मान सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे 10 मान के कंपेयर कर लेते हैं। रूट 3 इज इक्वल टू 1.732। ओके, सो फर्स्ट केस में वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 4 इंटू 1.732 इंटू पाई स्क्वायर विच इज रफली 10, रफली 10 मान लेते हैं, तो 4 इंटू 1.732 विल बी 6.8 6.9 इंटू 10, 69 के आसपास वैल्यू आ जाएगा, लमसम 69। और सेकंड केस में दिस इज 9 टू 10 विच इज इक्वल टू लमसम 90, भाई 90 से छोटा वैल्यू आएगा बट मान लिया 90 के आसपास आ रहा है। और 36 इंटू पाई विच इज 3.14, 36 इंटू 3 इज 108, तो ये वैल्यू हमारा आएगा 108 प्लस 4 और 5, तो दिस इज रफली 1130। तो क्लियरली ऑर्डर हमें दिख रहा है, 69 इज लेस देन 90, 90 इज लेस देन 113, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दैट विल बी लेस देन एरिया ऑफ सर्कल विच इज ऑप्शन ए, टी लेस देन एस लेस देन सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे जबकि हमें वैल्यूज सेम एज्यूम करनी है। ठीक है, दो फॉर एनी सच केस वेदर दैट इज अ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, और अ स्क्वायर और अ पेंटागन और अ हेक्सागन, अगर हमें कुछ भी और इससे बड़ी वैल्यूज गिवन होती तो वहां पे हमें एरिया निकालना मुश्किल होता। तो एज लॉन्ग एज, ठीक है, दे आर रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड नंबर ऑफ साइड्स भी आर इंक्रीजिंग, ठीक है, while perimeter is constant, perimeter is constant. So if perimeter is constant or same and number of sides we are increasing, so as number of sides are increasing, similarly area will also increase. So area will be maximum for circle which has basically infinitely many sides, है कि नहीं? So that is kind of एक infinitogon, ठीक है? So otherwise triangle will be having the least area followed by a square followed by a regular pentagon followed by a hexagon followed by a so on, ठीक है, till circle if perimeter is constant. So that is a basic funda. Okay. Clear? Next question. If the harmonic mean between two positive numbers is to their geometric mean is 12 is to 13, the numbers could be in what ratio? 12 is to 13, 1 by 12 is to 1 by 13, 4 is to 9, or 2 is to 3. What should be the ratio in this case? जबकि हार्मोनिक मीन हमारा क्या है? If numbers are a and b, so for those two numbers, arithmetic mean is average, which is a plus b by 2. Geometric mean is square root of product a into b, square root, and harmonic mean, this is equal to 2ab upon a plus b. Okay, this is geometric mean or GP, GM.
ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन दैट इज 12/30, तो 2ab अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए बी, दिस इज 12 अपॉन 30, तो 2 से सिंप्लीफाई किया 6 बचा, ए बी अपॉन रूट ए बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 30। तो या तो डायरेक्टली कंपेयर कर लो, जो सबसे ईजी तरीका है कि रूट ए बी इज इक्वल टू 6 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, यानी कि टू नंबर्स आर देयर जिनका सम 13 आ रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ देम इज 6, यानी कि ए इंटू बी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 एंड ए प्लस बी इज 13, ठीक है, हमें अल्टीमेटली रेशियो ही तो चाहिए। ठीक है, वैल्यूज तो नंबर्स के एक्जैक्टली हम निकाल भी नहीं पाएंगे, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 36 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स विल बी 9 एंड 4, 9 एंड 4, सो आंसर विल बी 4:9। ओके, 4:9 रेशियो होगा या फिर 9:4 होगा, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर तो कहीं पे मेंशन नहीं है, तो दिस कैन बी 4:9 और 9:4, बोथ आर पॉसिबल। ओके, क्लियर है, तो ये तो हो गया बेस्ट अप्रोच। अब अगर इस अप्रोच से कर लोगे तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज लंबा मेथड होगा, अदरवाइज फिर कैसे करोगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर्स का रेशियो, दैट कुड बी ए बाई बी और बी बाई ए, ठीक है, बट अदरवाइज वाला मेथड भी सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी और क्वेश्चन में भी कहीं भी जरूरत पड़े। तो कैसे करोगे, अब हमें यहाँ पे मिल गया रूट ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 6/13, बट हमें चाहिए रेशियो दैट इज इक्वल टू ए बाई बी। अब रेशियो के लिए हमें बी चाहिए डिवाइड में, तो ठीक है, बी चाहिए डिवाइड में, या फिर बी बाई ए लिखते हैं, ठीक है, बात एक ही है, अप्रोच सेम ही रहेगा, बी बाई ए लिखोगे तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ए बाई बी लिखा है हमने तो बी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो कैसे बी से डिवाइड करें सो दैट हमारे इस इक्वेशन को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, तो इक्वेशन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रूट ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी दिस इज 6/13, तो डिवाइड बाई बी ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो उससे हमारा इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, तो डिवाइड बाई बी ऑन बोथ साइड्स, नॉट ऑन बोथ साइड्स बट इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो रूट ऑफ ए बी अपॉन बी किया है, अभी बी अंदर जाएगा रूट के, तो दिस विल बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए बी अपॉन बी स्क्वायर विल बी रूट ऑफ ए अपॉन बी, क्लियर है बात, ठीक है, और ए प्लस बी पूरे को डिवाइड किया है बी से ऑब्वियसली, तो ए बाई बी प्लस 1 दिस विल बी आउटकम, दिस इज इक्वल टू 6/13। नाउ ए बाई बी को हम मान लेते हैं इक्वल टू एक्स, जैसे ही एक्स मान लिया तो दिस बिकम्स रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 विच इज 6/13, ओके, नाउ मल्टीप्लाई, सो 6x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 टाइम्स रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर कर दो बिकॉज रूट एक्स नहीं चाहिए हमको, शक्ल अच्छी नहीं लग रही इसकी, ठीक है, तो स्क्वायर कर दो इसको, या फिर अभी स्क्वायर कर लेते हैं रूट ऑफ एक्स को, क्या दिक्कत जा रही है, बिकॉज अल्टीमेट रेशियो तो पॉजिटिव आ रहा है, चलो अभी इसको स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि स्क्वायर करके और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, सो वी कैन एज्यूम दैट दिस एक्स इज बेसिकली इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि रेशियो है पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, सो वी कैन एज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और जैसे ही एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिखा तो दिस बिकम 6y स्क्वायर प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13x 13y, so 6y square minus 13y plus 6 is equal to 0, so this becomes 6y square minus 9y minus 4y plus 6 is equal to 0, so that is 3y minus 2 into 2y minus 3 is equal to 0, तो either y is equal to 2/3 और y is equal to 3/2, but x क्या है हमारा, x is y square, x will be equal to either 2/3 whole square which is equal to 4/9 और 3/2 whole square which is equal to 9/4, तो ऐसे सॉल्व करोगे उस केस में, क्लियर है, ठीक है, और x को हमने वाई स्क्वायर क्यों एज्यूम किया, क्योंकि जब भी x को वाई स्क्वायर मानते ही हमने एज्यूम कर लिया कि x पॉजिटिव होगा, बिकॉज x अल्टीमेटली रेशियो है, ठीक है, इसलिए x को वाई स्क्वायर मान सकते थे, अदरवाइज हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करते, ठीक है, 6x प्लस 6 दैट इज 13 रूट एक्स, इसको स्क्वायर करते, फिर आगे कहानी लेके जाते और फिर हम फिर उसके रूट्स निकालते, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और शॉर्टर अप्रोच तो हमने पहले ही देख लिया था, तो वैसे ही एग्जाम में करना है, ठीक है, एग्जाम में हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये लंबे मेथड से नहीं करना है बट फिर भी समझ लिया हमने, ठीक है, बट एक बात और जो ध्यान रखनी है कि यहाँ से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू एक्जैक्टली वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें तो रेशियोज ही मिलेंगे, ठीक है, तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि रूट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 6k में बी एंड ए प्लस बी में बी 13k, तो ए बी विल बी इक्वल टू 36k स्क्वायर और ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 13k, और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव 3 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट, so pause the video and solve all these 3 questions at your end yourself first, okay, like a DI. So first question, a certain race is made up of 3 stretches,
A, B, and C, each 2 km long and to be covered by a certain mode of transport. The following table gives 3 modes of transport for the stretches and the minimum and the maximum possible speeds in km per hour over these 3 stretches. The speed over a particular stretch is assumed to be constant and the previous record for the race is 10 minutes. The previous record is 10 minutes, यानी कि 10 minutes में someone completed the race and that is the shortest time. And then stretch A is completed by car and minimum speed of the car is 40, maximum speed of the car is 60. Stretch B is completed by a motorcycle, minimum 30, maximum 450 is the speed in km per hour. And C stretch is completed by a bicycle, minimum 10 is the speed and maximum speed is 20. Okay. So first question, Anshuman travels at minimum speed by car over A. So A stretch, B stretch and C stretch, all these 3 stretches are of 2 kilometers each. Anshuman travels at minimum speed by car over A. So Anshuman has traveled by speed of 40. So time taken क्या होगा? Time taken will be distance divided by speed. So 2 by 40, which is 1 by 20 r. और minutes में this will be 1 by 20 into 60, यानी कि 3 minutes. So Anshuman has taken 3 minutes in traveling the stretch A and completes stretch B at the fastest possible speed. Or fastest speed is 50 for motorcycle. So stretch B में time taken will be 2 by 50, which is 1 by 25 r. Or this will be 1 by 25 into 60. Time taken will be 1 by 25 into 60, which will be 2.4 hours. 2.4 minutes, not hours. 1 by 25 into 60, 12 by 5, यानी कि this will be 2.4 minutes. In stretch B, time taken is 2.4 minutes. Question is, at what speed should he cover stretch C in order to break the previous record? उसको previous record अगर break करना है 10 minutes का, तो what should be the speed in stretch C? And whether this is possible or not, because option is also this is not possible. ठीक है, तो 3 minutes is the time taken in stretch A. 2.4 minutes में stretch B को complete किया, तो already कितना time elapse हो गया है? 3 plus 2.4, इतना तो elapse हो गया, इतना तो चला गया time, तो 5.4 minutes he has already elapsed. So if he needs to break the record of 10 minutes, तो C stretch must be covered in time that is less than 4.6 minutes. बिकॉज अगर 4.6 मिनट्स में कवर किया तो 10 मिनट्स का टाइम हो जाएगा, उससे ज़्यादा में कवर किया तो टाइम विल बी टोटल टाइम विल बी ग्रेटर देन 10 मिनट्स. तो डेफिनेटली सी स्ट्रेच मस्ट बी कवर्ड इन टाइम लेस देन 4.6 मिनट्स. ठीक है, सो हम एक बार पहले तो निकाल लेते हैं कि इफ ही ट्रेवल्स एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बाइसिकल देन व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय हिम. तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ बाइसिकल 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन विल बी 2 by 20, which is 1 by 10 hour, which is equal to 6 minutes. So minimum time taken by him to cover stretch C is 6 minutes. He cannot cover stretch C in less than 6 minutes. That is not possible. ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि 6 मिनट से कम में वो कवर अप कर पाए. तो अगर वो 6 मिनट से कम में कवर अप नहीं कर सकता तो डेफिनेटली वी नो फॉर श्योर कि ही कैन नॉट कवर अप द रेस such that he breaks the record. That is not possible because he has to cover up the race in less than 4.6 minutes, the stretch C, but he cannot cover up it in less than 6 minutes. So that is not possible. Option C will be the answer. Okay. क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा इस केस में कि नॉट पॉसिबल. और क्या क्वेश्चन पूछता है, रिक्वायर्ड स्पीड क्या चाहिए होगी. हालांकि क्वेश्चन पूछ नहीं सकता बिकॉज मैक्सिमम भी में भी पॉसिबल नहीं है, बट रिक्वायर्ड स्पीड अगर पूछता है तो क्या होता है, क्योंकि हमें टाइम गिवन है. ठीक है, सो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टाइम गिवन है, तो किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम विच इज 4.6 से लेसर चाहिए तो 4.6 पे निकाल लो. ठीक है, जस्ट इससे बड़ा इससे ज़्यादा हो तो कुछ भी चलेगा. तो 4.6 डिवाइड बाई 60, दिस विल बी इन आर. This will be 120 upon 4.6 or 1200 upon 46, which will be 600 upon 23 kilometer per hour. Speed S should be greater than 600 by 23 kilometer per hour. और लमसम ये कितना आ रहा है हमारा, लमसम दिस इज 23 2s are 46, 140 बचा और 23 6 are 138, तो 26 and 2 by 3 किलोमीटर पर आवर. तो एनी स्पीड दैट इज ग्रेटर देन 26 and 2 by 23 कैन बी आवर आंसर. ओके, next question. Mr. Hare completes the first stretch at the minimum speed and takes the same time for stretch B. He takes 50% more time than the previous record to complete the race. The previous record was of 10 minutes, so he is taking 50% more time, यानी कि 5 minutes more time. So he is taking total 15 minutes to complete the race. Total 15 minutes to complete the race. Stretch A में he is taking time with minimum speed. तो minimum speed is 40. Already हम time निकाल चुके हैं, कितना time लगेगा. 2 by 40 is 1 by 20, यानी 3 minutes.
time in the stretch A. Similarly, stretch B में भी he's taking same time, 3 minutes. So total time is 15 minutes. So definitely he must have taken 9 minutes to complete stretch C. So speed निकालना है यहाँ पे, क्या आ जाएगा? Speed will be equal to, distance है हमारा 2 किलोमीटर, divide by 9 by 60. So 120 upon 9, which is 40 by 3, which is 13.33 kilometer per hour. Option B will be the answer. Clear? 13.33 kilometer per hour will be our speed in stretch C. Mr. Hayes' speed in stretch C. Okay. Next question. Mr. Tortoise completes the race at an average speed of 20 km per hour. His average speed for the first 2 stretches is 4 times that for the last stretch. Find his speed over stretch C. So he has completed speed at an average speed of 20 km per hour. Race at an average speed of 20 km per hour. तो टोटल डिस्टेंस कितना था रेस में? ए बी सी टोटल डिस्टेंस वॉज 2 + 2 + 2 6 किलोमीटर्स, और हमें एवरेज स्पीड गिवन है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल स्पीड 6/20, और ये तो आएगा आर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दोगे, यानी कि 18 मिनट्स इज द टोटल टाइम टेकन। 18 मिनट्स इज द टोटल टाइम टेकन। अब एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 2 स्ट्रेचेस इज 4 टाइम्स दैट फॉर द लास्ट 2 स्ट्रेचेस, लास्ट स्ट्रेच। तो स्ट्रेच ए, स्ट्रेच बी, स्ट्रेच सी। तो अगर हम यहाँ पे टाइम टेकन बाई हिम एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, so total time is 18, यानी कि a + b + c, this is equal to 18 minutes. Okay. और फिर क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 2 स्ट्रेचेस इज 4 टाइम्स दैट फॉर द लास्ट स्ट्रेच। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो फर्स्ट 2 स्ट्रेचेस यानी कि ए एंड बी, फॉर ए एंड बी एवरेज स्पीड फॉर ए एंड बी दैट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एवरेज स्पीड फॉर सी। एंड स्पीड फॉर एवरेज स्पीड फॉर ए एंड बी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इज 2 + 2 4, 2 + 2 डिवाइड बाई a + b इज टोटल टाइम। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मिनट्स में है, बट ठीक है, मिनट्स और डिवाइड बाई 60 कर लो, बात एक ही है, क्योंकि 60 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड्स में। एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एवरेज स्पीड इन सी, विच इज 2/c/60। 60 गेट्स कैंसल्ड आउट, और फिर 2 + 2 4 है, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बच जाएगा हमारे पास 2 × a + b इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू c। दिस इज द रिलेशनशिप, 2 × a + b दैट इज इक्वल टू c। और हमें निकालना क्या है? स्पीड ओवर स्ट्रेच सी, यानी कि हमारा कंसर्न इज फाइंडिंग आउट सी। तो 2 × a + b c आ रहा है, यानी कि a + b विल बी इक्वल टू c/2। रिप्लेस a + b विद c/2, तो इक्वेशन बिकम c/2 + c, दिस इज इक्वल टू 18, तो 3c इज इक्वल टू 36, c विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, c इज इक्वल टू 12 आ गया, और हमें चाहिए स्पीड ओवर स्ट्रेच सी, तो स्पीड ओवर स्ट्रेच सी दैट विल बी इक्वल टू 2/12/60, तो 2/5, एक सेकेंड, 2/5 नहीं, 120/12 विच इज इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आंसर विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी कहानी की, अब एक सिंपल फंडा है, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस के तुमने मेरे सेशंस देखे होंगे, जहाँ पे हम बार बार रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि करना चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स थिंग्स सिंपल फॉर अस। ठीक है, जितना भी ज़्यादा अरिथमेटिक में रेशियोज का यूज़ करो, उतना ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होती हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वेन एवर डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, तो वी नो फॉर श्योर दैट स्पीड एंड टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, या टाइम का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो इस केस में डिस्टेंस से कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट हो या फिर सेम हो, कांस्टेंट और सेम होना एक ही बात है। ठीक है, अगर सेम है तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ए बी सी देयर आर 3 स्ट्रेचेस, और डिस्टेंस हमारा इन ऑल 3 स्ट्रेचेस इज सेम, दैट इज 2 किलोमीटर्स। Question is saying average speed for the first 2 stretches is 4 times that for the last stretch. Okay, यानी कि speed in the first 2, तो first 2 stretches मिला के distance is 4 kilometers, that is double of the third stretch, that is double of the third stretch. ठीक है, तो basically this is 2 kilometer into 2। अगर दोनों केस में स्पीड, यानी कि ए एंड बी का स्ट्रेच का स्पीड और डिस्टेंस और सी स्ट्रेच का डिस्टेंस हमारा सेम होता, इफ डिस्टेंसेस वाज सेम, इफ डिस्टेंसेस सेम वर सेम, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते।
ठीक है, और हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो फॉर दीज टू स्टेशंस इज 4:1 फॉर ए एंड बी एंड सी। स्पीड का रेशियो आ रहा है 4:1। तो इफ द डिस्टेंस वॉज सेम तो टाइम का रेशियो आता हमारा क्या, दैट वुड हैव बीन 1:4, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड, इजंट इट सो? 1:4 आता, बट ये तब आता जबकि डिस्टेंस वॉज सेम, इफ डिस्टेंस वॉज सेम, बट डिस्टेंस सेम तो है नहीं। ठीक है, डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, डिस्टेंस डबल है ए इंटू बी में, डबल ऑफ सी है, सेम नहीं है, डबल है। तो अगर सेम होता तो टाइम टेकन होता 1 यूनिट फॉर ए एंड बी, बट डबल है तो टाइम टेकन भी डबल हो जाएगा, तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टाइम टेकन इज 2 यूनिट्स फॉर ए एंड बी स्ट्रेच और 4 यूनिट्स फॉर सी स्ट्रेच, टोटल टाइम हो गया 6 यूनिट्स, और टोटल टाइम 6 यूनिट हमारा कितने के बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस 6 था तो 6/20 इंटू 60, यानी कि 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 18, तो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 मिनट्स, and hence speed for stretch C will be equal to 2/12/60. So that is equal to 10 km/h, option C. Okay. Clear? बिकॉज जब एक बार अच्छे से रेशियोज को यूज करना सीख जाओगे तो फिर वहां पे तुम्हें अननोन्स मिनिमल मानने पड़ेंगे, कम से कम मानने पड़ेंगे, और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू विल नॉट बी कंफ्यूज विद अननोन्स कि ए माना, बी माना, सी माना, फिर इक्वेशंस बनाई और फिर फंस गए किसी इक्वेशन में जाके कहीं पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the maximum possible value of 21 sin x plus 72 cos x? Now this is a typical a sin theta plus b cos theta type. ठीक है, and whenever we have to find out minimum and maximum value for a sin theta plus b cos theta, so minimum value for this is root of a square plus b square with a negative sign, and maximum value is root of a square plus b square with a positive sign. हमें चाहिए maximum possible value. Maximum possible value will be root of 21 square प्लस 72 स्क्वायर। अब ऑलरेडी जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको कॉमन निकाल लो, तो पहले ही निकाल सकते थे वैसे तो। ठीक है, कि यहाँ पे हमें 3 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ 7 साइन एक्स प्लस 24 कॉस एक्स। ओके, तो 3 को पहले ही बाहर ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 3 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और 7 एंड 24 मेक अ ब्यूटीफुल राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 7, 24 एंड 25। तो रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, तो 3 इंटू 25 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 75, मिनिमम वैल्यू माइनस 75 एंड मैक्सिमम वैल्यू प्लस 75, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 75। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Four friends start from 4 towns which are at the 4 corners of an imaginary rectangle. They meet at a point which falls inside the rectangle after traveling distances of 40, 50 and 60 meters. The maximum distance that the fourth could have traveled is approximately what? 67 meters, 52 meters, 22.5 meters, or cannot be determined. The four friends are starting from 4 towns which are at 4 corners of an imaginary rectangle. This is also a good question. Try to solve it. So 4 friends are starting from these 4 corners, let us say, of the rectangle, and 3 of them are traveling distances of 40 meters, 50 meters and 60 meters. Let us say this is 40, ठीक है, this is 50, this is 40 and this is 60. So we know 3 distances and 4th distance we have to find out. Let us say this distance here is equal to d, and d we have to find out what will be value of capital D. And also maximum possible distance question is asking, यानी कि there can be multiple values possible, बिकॉज वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यूज हमारा डिपेंड करेगा 40, 50, 60 कहाँ पे अरेंज कर रहे हो तुम, उस पर हमारा वैल्यू डिपेंड करेगा। दैट इज वाई मैक्सिमम डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, पहले अपने पे पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना कि कैसे सॉल्व करोगे इसको। सो कैसे हम इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इफ वी ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन ऑल साइड्स फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट, बिकॉज देन विल बी सीइंग मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स, एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स जहाँ पे भी दिखेंगे फिर वो हमको हेल्प करेंगे, बिकॉज हमें
शक्ल दिखेगी हाइपोटेन्यूज की, 40 50 60 सब हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे और रेक्टेंगल है। सो नाउ वी आर सीइंग मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो इफ वी अज्यूम दिस साइड हियर इक्वल टू स्मॉल a, so this side here this will also be equal to small a, isn't it so? ठीक है। then if we assume this is equal to b, this will also be b, ठीक है। this will also be b and similarly this will also be b, ठीक है। ऐसे ही this will also be a and then if this is c, this will also be c, this here this will also be c and then remaining जो बच गया उसको स्मॉल d मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं, या फिर d कैपिटल d माना हुआ है तो d ना मान के इसको e मान लेते हैं, स्मॉल e। तो दिस विल ऑल्सो बी स्मॉल ई, दिस विल ऑल्सो बी स्मॉल ई, ओके। अब हमारे लिए जो साइड्स गिवन है उनको अकॉर्डिंगली पाइथागोरस ट्रिपलेट बना के, ट्रिपलेट तो नहीं बनेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं बनेंगे, बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इन दिस ट्रायंगल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 40 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, इन दिस ट्रायंगल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर, and then in this triangle c square plus e square is equal to 60 square, and lastly in this triangle a square plus e square this is equal to 50 square। अब हमें इनको कंबाइन करना है इस अरेंजमेंट में, सो दैट हम डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो इफ वी कंबाइन फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी ई, दीज टू विच आर बेसिकली ऑपोजिट, ठीक है। 40 एंड 60 को अगर कंबाइन करें, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट प्लस थर्ड is equal to a square plus b square plus c square plus c square, that is equal to 40 square plus 60 square. Similarly, if we combine second and fourth equation, तो भी तो यही हो रहा है, a square plus b square plus c square plus c square, यानी कि 40 square plus 60 square is also equal to capital D square plus 50 square. So now we can solve it. 40 square plus 60 square becomes equal to d square capital D square plus 50 square. और यहाँ से हमें क्योंकि एक ही अननोन है तो वी कैन सॉल्व इट। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, बट इसको समझने के लिए हमने इतना टाइम लिया, ठीक है, क्योंकि अभी हम पूरा क्वाड्रिलेटरल पूरा तो नहीं डिस्कस कर रहे, पूरा रेक्टेंगल। सो समझने के लिए हमने इतना टाइम लिया। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि नाउ दिस इक्वेशन बिकेम 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ओके। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम दिस इज ओके, क्लियर है। सो यहाँ से हमें डी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, दैट कैपिटल डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर minus 50 square, which will be 1600 plus 3600 and 5200 minus 2500, that is 2700. D square आ गया 2700, D will be equal to root of 2700, which will be roughly 52 के आसपास वैल्यू आएगा। बट क्या आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा? दिस कैन बी वन ऑफ द डिस्टेंसेस, बट क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा? सोचो एक बार, विल दिस बी मैक्सिमम डिस्टेंस? एंड देयर वाज अ रीजन कि पहले मैंने 40 मेंशन किया था ना, अगर याद किया हो, जब स्टार्ट किया था सॉल्यूशन 40 मेंशन किया था, फिर उसको जान के इंटेंशनली 40 को 50 से चेंज कर दिया था, बिकॉज दिस इज नॉट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। क्यों ये मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है? क्योंकि जब हमने ये इक्वेशन बनाया 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो 40 एंड 60 को हमने ऑपोजिट रखा, ठीक है। और फिर एक अननोन आ रहा है हमारे दूसरे वाले डायरेक्शन में 50 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो इफ वी वांट डी टू बी मैक्सिमम, तो द कपल द पेयर विद डी शुड बी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, तब तो मैक्सिमम आएगा डी। तो इंस्टेड ऑफ 50 अगर हम डी के ऑपोजिट में 40 को रखें, देन विल बी गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी। इफ यू कीप दिस एज 40, देन डी विल बी मैक्सिमम। अगर ऑपोजिट वाले ने सबसे कम डिस्टेंस चला होगा तो देन डी विल बी मैक्सिमम, इजंट इट सो? ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल 40 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 2500 प्लस 3600, 36 प्लस 25 और माइनस 2000। तो दिस विल बी 16 प्लस 25 40, एक सेकेंड, 2500 प्लस 2000 4500,
तो डी स्क्वायर आ रहा है 4500, तो डी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4500 और 10 टाइम्स रूट ऑफ 45 और 30 टाइम्स रूट ऑफ 5. Okay, 30 times root of 5, and root 5 is 2.236. 2.236. So 30 into 2.23 will be our answer. Roughly 30 into 2 is 60, and so 66.9 or roughly 67 will be our answer. Maximum value will be 67. 52 possible hai. This is possible, but this is not maximum. Maximum will be 67 meters, option A. Okay, and in general, the property is British flag theorem, that is that if we have a point inside a rectangle, any point inside the rectangle, and distance of that point from the four vertices is A, B, C and D in that order. So A square plus D square, A square plus D square नहीं plus C square होगा. A square plus C square is equal to B square plus D square. ये लिखते समय थोड़ा उल्टा से लिख देते ना, तो A square plus C square is equal to B square plus D square, अगर ऑर्डर हमारा है A B C D. ओके, तो sum of squares of distances from opposite vertices will be equal. Okay, A square plus C square, that is equal to B square plus D square. This is the property. क्या है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B take P hours and 7 and 1/5 hours respectively to reach Y and X respectively. What is the value of P? What is the value of P? So first of all, let us revise the short concept. If two persons are moving towards each other और मिलते हैं after some time, ठीक है, they meet after some time, और मिलने के बाद फिर से बिछड़ जाते हैं, जो होता ही है कहानी में, ठीक है. सो दे मीट और फिर से बिछड़ जाते हैं. तो द मीटिंग्स हैपन और दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया, तो लेट अस से दे टुक टी टाइम इन मीटिंग, क्योंकि सेम टाइम पे स्टार्ट किया है तो टाइम तो सेम रहा, ठीक है. टाइम टेकन बाय देम बिफोर मीटिंग वो तो सेम है, दैट इज इक्वल टू टी. और मीटिंग के बाद में फर्स्ट पर्सन को, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दिस इज द सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को मीटिंग के बाद में लेट अस से T1 टाइम लगा टू रीच दैट डेस्टिनेशन, एंड सेकंड पर्सन टुक T2 टाइम टू रीच दैट डेस्टिनेशन. So in such a case, speed of first person if that is equal to S1 and speed of second person if that is equal to S2, so S1 upon S2, this is equal to square root of T2 upon T1. Time T2 is the time taken by the second person after meeting, and T1 is the time taken by the first person after meeting. So S1 by S2 is equal to root of T2 by T1. This is our first property. And second property is that time for them to meet is equal to T is equal to root of T1 into T2. So these are the two properties. T is equal to root of T1 into T2 and S1 by S2 is equal to root of T2 upon T1. इस क्वेश्चन में हमें क्या किया ना, स्पीड ऑफ A is 20% more than that of B. A हमारा पहला पर्सन है, B दूसरा पर्सन है, तो वी कैन से स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B और S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2, दिस इज इक्वल टू 20% ज़्यादा है, यानी कि 1/5 ज़्यादा है स्पीड ऑफ A. तो A की स्पीड 1 ज़्यादा है B से, अगर B की स्पीड 5 है, यानी कि SA अपॉन SB विल बी इक्वल टू 6/5. 6/5 हो जाएगा. And SA upon SB, this should also be equal to root of T2 upon T1. और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे A and B टेक P hours and 7 and 1/5 hours respectively. ठीक है, तो A को लग रहा है P hours, तो P will be T1 and 7 and 1/5 will be equal to T2. 7 and 1/5 will be 7 into 5, 35 plus 1, 36. तो दिस इज 36/5. तो T2 है 36/5 और T1 है हमारा P. तो 36/5 T2 अपॉन T1 यानी कि 36/5 अपॉन P. दिस विल बी वैल्यू. सॉल्व कर लो इसको. तो 6/5 is equal to root of 36 upon 5p. Square on both sides. So 36 upon 25 is equal to 36 upon 5p. And hence न्यूमरेटर तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे. p is equal to 5 आ जाएगा. p is equal to 5, ऑप्शन A. ओके, क्लियर है? Next question. The rate of inflation was 1000%. Then what will the cost of an article which costs 6 units of currency now 2 years from now? At present, it costs 6 units of currency and 2 years from now इसका cost क्या होगा if rate of inflation is 1000%?
ठीक है, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दिस इज नॉट चेंज, दिस इज नॉट, तो इन्फ्लेशन की वजह से न्यू कॉस्ट प्राइस हमें कैसे मिलेगा, दिस इज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, तो 1000% विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स, 100% इज 1 टाइम 1x, तो 1000% इज 10x 10 टाइम्स, बट 10 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा अगर एट प्रेजेंट इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, सो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज क्या होगा, इन्फ्लेशन हो रहा है हमारा 10x का, यानी कि 10 टाइम्स हमारा इंक्रीज होगा, हमारी कॉस्ट जो है वो 10 टाइम्स नहीं होगी, कॉस्ट में इंक्रीज 10 टाइम्स होगा, यानी इंक्रीज इन द कॉस्ट विल बी 10 टाइम्स, तो प्लस 60 10x होगा, इंटू 10, 6 इंटू 10 60 का इंक्रीज होगा, 66 विल बी न्यू कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, देन फर्दर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज क्या होगा, 66 इंटू 10, तो 660 इंक्रीज होगा, 66 प्लस 660 दैट विल इक्वल 726, तो आफ्टर 2 years it will be 726, okay, clear, in terms of ratio देखें तो if 1 was the cost initially there will be increase of 10, तो cost will be 11 after 1 year, और फर्दर फिर से 11 का, यानी कि 11 इंटू 11 होता रहेगा, तो इनिशियली अगर 6 था तो इंटू 11, और 2 years के बाद पूछ रहे हैं तो इंटू 11 स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, तो अगर n years के बाद में पूछते हैं 6 इंटू 11 टू द पावर n वुड हैव बीन द आंसर, ओके, ठीक है, क्योंकि 2 years के बजाय n years के लिए पूछ सकता था, तो आंसर वुड हैव बीन 6 इंटू 11 टू द पावर n, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, there were X pigeons and Y manas in a cage. One fine morning, P of them escaped to freedom. The bird keeper, knowing only that P is equal to 7, was able to figure out, without looking into the cage, that at least one pigeon had escaped. Which of the following does not represent a possible XY pair? X pigeons थे और Y manas थे in a cage. One fine morning, P of them escaped. If the bird keeper, knowing only that P was equal to 7, तो उसको ये तो पता चल गया कि that P is equal to 7, यानी कि 7 in total have escaped. And he was able to figure out, without looking into the cage, that at least one pigeon had escaped. So how can he know for sure that at least one pigeon had escaped without looking at the cage? He can only know this if he knows for sure that number of manas is less than 7. Isn't it so? अगर उसको ये for sure पता है कि number of manas are less than 7, then definitely अगर 7 birds have escaped, तो at least one must have been the pigeon. Because अगर number of manas is equal to 7, for example, so it might be possible that all 7 manas have escaped. If number of manas is greater than 7, if it is 8 or 9 or any other number, तब तो possible है कि सारे के सारे manas ही हो, ठीक है, so if he knows for sure without looking that at least one pigeon has escaped, that for sure implies that number of manas must be less than 7, so y must be less than 7. This is a must condition, this must be true, ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है विच द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ पॉसिबल एक्स वाई पेयर, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा जहां पे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, दैट विल नॉट फॉलो बिकॉज दिस इज अ मस्ट कंडीशन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाला केस हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ऑप्शन ए में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑल अदर्स आर पॉसिबल, ओके, ऑल अदर्स आर पॉसिबल बट ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल हमारा, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, next question. A man can walk up a up escalator in 30 seconds. The same man can walk down this moving up escalator in 90 seconds. Assume that his walking speed is same upwards and downwards. How much time will he be taking to walk up the escalator when it is not moving? Whether that will be 30 seconds, 45, 60 or 90. अब moving up escalator है, यानी कि escalator is moving up and man is also moving up, then time taken is 30 seconds. ठीक है, escalator भी upwards जा रहा है, man is also going upwards, time taken is 30 seconds. In the second case, escalator is moving up, but the man is moving down. He is going down and he is taking time equal to 90 seconds. ठीक है, अब देखो एक बात तो पक्की है, अगर escalator moving upwards है और man is going down और still he is able to reach down, तो definitely man का स्पीड ज़्यादा होगा, है कि नहीं, मैन का स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो पहुंच पाएगा, अदरवाइज कभी नहीं पहुंच पाएगा, तो मैन का स्पीड ज़्यादा होगा. Assume that his walking speed is same to upwards and downwards. How much time will he be taking to walk up the escalator when it is not moving?
तो अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा है तो मैन को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड से जाना है। पहले वाले केस में एस्केलेटर वॉज सपोर्टिंग हिम बिकॉज बोथ वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कुछ स्टेप्स एस्केलेटर ने चले, कुछ स्टेप्स मैन ने चले, सो समहाउ दे कंप्लीटेड द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन 30 सेकेंड्स। सेकेंड केस में क्या हुआ कि एस्केलेटर जो भी स्टेप्स चले वो अपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी कि इफेक्टिवली मैन हैड टू वर्क सम एडिशनल स्टेप्स बिकॉज ऑफ एस्केलेटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और rather मैन वॉज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्केलेटर तो अपनी डायरेक्शन में जा रहा था बट मैन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। बट बहरहाल मैन हैड टेकन 90 सेकेंड्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन और टू वॉक डाउन द एस्केलेटर, इजंट इट? सो टोटल 90 सेकेंड्स। तो जो हमारा थर्ड केस है जहाँ पे कि एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, टाइम टेकन मस्ट बी बिटवीन दीज टू, ना तो 30 होगा ना तो 90 होगा, टाइम टेकन मस्ट बी बिटवीन 30 एंड 90। ये तो बात तो पक्की है, ठीक है, कि 45 होगा या फिर 60 होगा, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, इजंट इट? सो क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो पहले हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लेते हैं मैन का स्पीड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस गिवन नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ मैन लेट अस से दैट इज इक्वल टू m, और स्पीड क्या होगा, स्टेप्स पर सेकंड होगा। सिमिलरली ये स्पीड मैन का मान है, ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ द एस्केलेटर इज इक्वल टू e स्टेप्स पर सेकंड। सो इन द फर्स्ट केस व्हेन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो मैन टोटल 30 सेकंड्स लगे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर, टोटल नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स इन द एस्केलेटर, विजिबल स्टेप्स जो कि दिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो जो विजिबल स्टेप्स हैं दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है साइन टाइम्स डिस्टेंस वाले केसेस में, सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स इन एस्केलेटर आर ऑलवेज कांस्टेंट, नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स, एंड दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस ऑफ एस्केलेटर। So first case में number of visible steps if that is equal to n, n will be equal to as per the first case 30 seconds travel कर रहे हैं, man is also moving up, escalator is also moving up, 30 seconds लग रहा है, तो 30m will be number of steps traveled by the man and 30e will be number of steps traveled by the escalator in the first scenario. Second scenario में number of total steps traveled will be equal to n, but इस बार क्या हो रहा है, escalator is moving in the opposite direction of man और ultimately man जा रहा है downwards, तो number of steps taken by man will be 90m और number of steps taken by escalator will be 90e, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा और इफेक्टिवली क्योंकि 90m यानी कि अल्टीमेटली मैन वॉक्स डाउन द एस्केलेटर, तो 90m विल बी ग्रेटर देन 90e, ठीक है। टोटल n विल बी इक्वल टू दीज टू, इक्वेट कर लो, यहाँ से हमें m बाई e मिल जाएगा, ठीक है। 30m माइनस 90m 60m विल बी इक्वल टू 120, सो m अपॉन e इज इक्वल टू 2/1, दिस इज इक्वल टू 2/1। अब स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर का रेशियो आ रहा है 2:1, ठीक है। हमें नहीं पता कि मैन का स्पीड क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स पर सेकंड। सिमिलरली हमें एस्केलेटर का स्पीड नहीं पता कि क्या होगा, बट रेशियो इज 2:1 फॉर श्योर। तो हम एज्यूम कर सकते हैं इसके बाद में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सॉल्व करना है और सॉल्व करके फाइंड आउट करना है टाइम। हमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन एस्केलेटर फाइंड आउट नहीं करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, वो फाइंड आउट कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं लेट अस से मैन इज मूविंग 2 स्टेप्स पर सेकंड एंड एस्केलेटर इज मूविंग 1 स्टेप पर सेकंड, ओके। सो दैट वे टोटल स्टेप्स हमारा एन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें मैन का स्पीड भी यहाँ से मिल गया। टोटल एन विल बी इक्वल टू 30m प्लस 30e, ठीक है। या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि 30m प्लस 30e दिस विल बी टोटल डिस्टेंस दैट हैज टू बी ट्रैवल, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एंड डिवाइडेड बाई, अब तो मैन अकेला ट्रैवल कर रहा है तो डिवाइड बाई m कर दोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो या तो ऐसे सोच लो दिस विल बी 30m बाई m विच इज इक्वल टू 30 प्लस 30 टाइम्स ऑफ e बाई m, ओके। m बाई e है 2/1, तो e बाई m विल बी 1/2, तो 30 प्लस 30 इंटू 1/2, तो 30 प्लस 15 यानी 45 सेकंड्स विल बी द टाइम टेकन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। या तो इस तरह से सोच लोगे, अदरवाइज तुमने एज्यूम कर लिया कि 2 स्टेप्स पर सेकंड मैन का स्पीड है, 1 स्टेप पर सेकंड एस्केलेटर का स्पीड है, तो किसी भी एक केस में अप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारा एन आ जाएगा यहाँ से 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 1, और क्योंकि मैन ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड है 2, जो डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा, दैट विल इक्वल टू 90/2 45 सेकंड्स विल बी आवर आंसर, ओके। क्लियर है? अगर एस्केलेटर ट्रैवल कर रहा है और सिर्फ उसके लिए पता लगाना होता तो डिवाइड बाई 1 करते, आंसर आया था हमारा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया एक अप्रोच हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट बेस्ट अप्रोच क्या होता है इन सच केसेस? देखो हमारे 3 केसेस ही बनेंगे जब भी एस्केलेटर का क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे ओनली 3 केसेस आर पॉसिबल, ठीक है। अनलेस की क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स करे कि मल्टीपल पर्सन हो, सबकी स्पीड अलग अलग हो, तब फिर हमें अपने बेसिक फंडास को सॉल्व करके अप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट अदरवाइज देयर आर 3 केसेस। 1 केस इज व्हेन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो इफ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मैन
एज वेल एज एस्केलेटर, तो स्पीड विल बी m plus e. ठीक है. सेकंड केस कुड बी दैट ओनली मैन इज मूविंग, एस्केलेटर इज नॉट मूविंग. ठीक है, इट इज नॉट मूविंग, तो स्पीड ऑफ मैन विल बी इक्वल टू m. थर्ड केस इज व्हेन मैन इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड एस्केलेटर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ इफेक्टिव स्पीड विल बी m minus e. तीन स्पीड होगा m plus e, m minus e. ठीक है. एंड दीज स्पीड वैल्यूज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है. और अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज कांस्टेंट यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्पीड्स अगर एपी में है तो टाइम वैल्यूज विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इफ स्पीड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर सेम डिस्टेंस देन टाइम वैल्यूज विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो हमें टाइम वैल्यूज दो केसेस के लिए गिवन था. तो दैट वैल्यू फॉर द मिडिल वैल्यू दिस विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज. फर्स्ट केस में हमें गिवन था टाइम वॉज 30 सेकंड्स, सेकंड केस में टाइम वॉज 90 सेकंड्स, तो हार्मोनिक मीन विल बी 2ab अपॉन a plus b. तो 2 into 30 into 90 upon 30 plus 90. So that is equal to 60 into 90 upon 120, which is equal to 45 seconds. क्या ये क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 45 seconds. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question, K1, K2 and K3 are parallel lines. AD is equal to 2 cm, BE is equal to 8 cm and CF is equal to 32 cm. तो हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज AB into EF and BC into DE. Now K1, K2 and K3 are parallel lines. So there are three parallel lines K1, K2, K3 and there are two transversal lines AC and DF. Okay. So whenever there is such a case, we can definitely say, हमें values की ऐसा ज़रूरत नहीं है 2832. We can definitely say that AB upon BC, this will be equal to DE upon EF. These will always be equal. If there are three parallel lines and two transversals are intersecting them, the points are AB, C, D, E, F respectively. So AB by BC will be equal to DE by EF. And if that is so, तो AB into EF will be equal to BC into DE. AB into EF, this will be equal to BC into DE. Okay, and hence both quantities will be equal. Option C will be the answer. Okay, बाकी to understand it क्या कर सकते हैं हम, we can extend these two lines because जैसे ही extend करोगे these are non parallel. ठीक है, तो these will ultimately be intersecting at some point. ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में बना लेते हैं ताकि और बेटर समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट बहुत ऊपर कर रहा है. सो लेट अस से दिस इज द सिनेरियो and this is the intersection point. Let us say that is equal to M, and then here that was AD, then BE, and finally CF. Okay, now focus on three triangles: triangle MAD, MAD, and triangle MBE. So can you identify that since AD and BE are parallel, CF भी parallel है, so since these three lines are parallel, तो AD और BE अगर parallel है तो respective angles, angle MAD will be equal to angle MBE. Similarly, angle MDA will be equal to angle MEB. और एक एंगल तो हमारा एंगल M तो कॉमन ही है. So clearly these two triangles, triangle MAD and triangle MBE, these will be similar triangles. और अगर triangles हमारे similar हैं तो MA upon MB, this will be equal to MD upon ME and this will be equal to AD upon BE. ठीक है, सो हमें AD 2 गिवन है और BE 8 गिवन है. AD is equal to BE is equal to 8, this is equal to 2 by 8 और 1 by 4. ठीक है, तो अगर 1/4 रेशियो आ रहा है हमारा फॉर AD by BE, तो यही सेम रेशियो होगा फॉर MA by MB, यानी कि MA विल बी इक्वल टू 1 यूनिट एंड MB विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स. ठीक है, MA 1 यूनिट होगा, MB हमारा टोटल 4 यूनिट्स होगा. क्या ये बात क्लियर है? और जैसे ये बात क्लियर हो जाती है हमें, तो वी नो फॉर श्योर दैट इफ MA इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड MB इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, तो वी कैन से दैट MB माइनस MA यानी कि AB विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स. भाई अगर MA हमारा 1 यूनिट है रेशियो में,
ठीक है, तो टोटल एम बी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो अगर ये दिस इज 1x तो दिस विल बी 3x। सिमिलरली इफ एम डी इज इक्वल टू वन यूनिट तो एम ई विल बी 4 यूनिट्स। एम डी अगर 1 यूनिट है हमारा, 1y है, तो एम ई विल बी इक्वल टू 4y, तो डी ई विल बी इक्वल टू 3y। और बाय द सेम लॉजिक वी कैन से दैट ट्रायंगल मैड एंड ट्रायंगल MCF दीज विल ऑल्सो बी सिमिलर। और वहां भी ये सेम कहानी अप्लाई करेंगे कि रेशियो हमारा क्या आ रहा है, 2 बाई दिस इज 32, तो 1/16 का रेशियो आ रहा है। तो इफ दिस इज 1 टोटल विल 15, ये पूरा 15 हो जाएगा। अगर पूरा 15 है, दिस वॉज 1, दिस इज 3, तो 15 माइनस 4 दिस विल बी 11x। सॉरी दिस विल बी 15 माइनस 4, टोटल 16 था ना, 16 था 1 के अलावा 16 था। ओहो एक सेकेंड, रेशियो क्या आ रहा था हमारा, 2/32, 1/16 आ रहा था। ठीक है, 1/16 आ रहा था, टोटल 16 था, तो 1 को रिमूव करने के बाद 15 बचेगा, तो दिस मस्ट बी 12x, तभी तो आएगा। ठीक है, 1/15x, 1x/15x, ठीक है, टोटल 16x आएगा। सिमिलरली यहाँ पे दिस विल बी 12y। आप सॉल्व करोगे, सॉल्व में 3x इंटू 12y विल बी इक्वल टू 3y इंटू 12x। बट ये लॉजिक भी क्लियर होगा कि कैसे ये चीज़ प्रूव हो रही है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया पहले ही, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ अनदर, देन वैल्यू ऑफ k क्या होगा। सो वन ऑफ द रूट्स इज द स्क्वायर ऑफ अनदर, सो इफ वन रूट इज अल्फा, अदर रूट विल बी अल्फा स्क्वायर। और हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट इज -8, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -8, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -8, तो अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू -2, क्योंकि -2 क्यूब इज इक्वल टू -8, निगेटिव है तो एक ही वैल्यू है। ठीक है, -8 है, क्लियर है। ठीक है, जब पावर ऑड है तो वहाँ पे यूनिक वैल्यू मिलेगा स्ट्रेट अवे। अगर स्क्वायर होता है, अल्फा स्क्वायर 4 होता है, तो अल्फा प्लस -2 होता है, तो अल्फा इक्वल टू -2 आ गया, एंड सेकंड रूट अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू -2 + 4 विच इज इक्वल टू +2। सम ऑफ रूट्स +2 है, तो के हमारा क्या होगा, बिकॉज सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा, सम विल बी इक्वल टू -k, प्लस के गिवन था ना, तो -k होगा सम, -k इज इक्वल टू +2, सो के विल बी इक्वल टू -2। यहाँ पे गलती एंड में ये नहीं करना है कि तुम -2 की वजह +2 आंसर कर दो, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, -2, के इज इक्वल टू -2 विल बी देयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, and D are 4 towns, any 3 of which are non-collinear, then number of ways to construct 3 roads each joining a pair of towns so that the roads do not form a triangle, क्या होगा। A, B, C, and D 4 towns, any 3 of which are non-collinear, then number of ways to construct 3 roads each joining a pair of towns so that the roads do not form a triangle. Condition है कि roads should not be forming a triangle and there are 4 points, 4 towns which are non-collinear. ठीक है, so let us say these are 4 towns A, B, C, D. And these are not in a line. Number of ways to construct 3 roads. अब टोटल हमारे पास सिंस 4 टाउन्स हैं, इनको कनेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। यू कैन कनेक्ट A with B और A with C और A with D और B with C और B with D और C with D। टोटल वेज, टोटल रोड्स कैन बी, टोटल रोड पॉसिबल है 6 है क्या, कि A B A C A D B C B D एंड C D, टोटल रोड्स ऑफ पॉसिबल है 6। ठीक है, या फिर ऐसे सोचते हैं 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो 4 C2 वेज में वी कैन कनेक्ट 2 ऑफ देम, यानी कि 6 रोड आर पॉसिबल, नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 6, 6 रोड्स आर पॉसिबल, बट हमें कंस्ट्रक्ट करना है टोटल 3 रोड्स, 3 roads such that the roads do not form a triangle. So out of these 6 roads, we have to select 3 roads. Select 3 roads. The number of ways of selection will be 6C3, which will be equal to 6 into 5 into 4 by 6, which is equal to 20. So 20 roads, 20 ways are possible, not roads. 20 ways of selection will be 3 roads select करें, 20 ways are possible. Total 20 ways possible है, but question का condition important है that roads
डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। रोड्स कब एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे? जबकि ऑल थ्री रोड्स आर कंस्ट्रक्टिंग ओनली थ्री, ऑल थ्री रोड्स आर कनेक्टिंग ओनली थ्री वर्टिसेस, ओनली थ्री टाउन्स। ठीक है, सारी तीन रोड्स हमारी तीन टाउन्स को ही कनेक्ट करें, तभी हमारा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कुल मिला के कैसे कैसे ट्राइंगल बन सकते हैं? 20 वेज में से वी हैव टू एलिमिनेट दोज वेज वेयर द थ्री रोड्स आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो वन केस कुड बी व्हेन थ्री पॉइंट्स आर ए बी एंड डी, और हमने इन्हीं तीनों के बीच के रोड्स को कनेक्ट कर दिया, ओनली दीज थ्री रोड्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। Similarly, when we have selected A, B, and C, similarly B, C, and D, similarly D, A, and C. Basically, we have to just eliminate those cases जहाँ पे हम 4 में से 3 टाउन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और बस उनके बीच की रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस 6C3 minus 4C3, these 4C3 will be the cases when roads will form a triangle. So our answer will be 20 minus 4 and hence equal to 16 roads. Answer will be 16 roads. क्या ये क्लियर है? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, बट क्या ये बात समझ पाए? हमने एलिमिनेट कैसे किया कि वेन एवर दीज थ्री रोड्स विल बी फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, कब ट्राइंगल फॉर्म करेंगे? जब दीज थ्री रोड्स आर ओनली कनेक्टिंग थ्री टाउन्स, और फोर्थ को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो फोर्थ को एक्सक्लूड करने के तरीके कितने हैं? ओनली फोर वेज आर देयर, इधर ए विल बी एक्सक्लूडेड और बी और सी और डी, या फिर ऐसे देखो तीन को सेलेक्ट करने के तरीके, तो दैट विल बी 4C3। ओके, सो वेन वी आर सेलेक्टेड ओनली थ्री वर्टिसेस और बस थ्री टाउन्स और उनको ही कनेक्ट किया, तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 4। So we'll be eliminating those 4 out of 20, 20 minus 4, 16 roads are possible. 16 roads, बार बार roads बोल रहे हैं, जबकि roads नहीं है, 16 ways है। roads तो हमारी हर एक केस में 3 है। ठीक है, 16 ways are possible. ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, अब एक अप्रोच समझते हैं, थोड़ा सा लंबा अप्रोच होगा बट उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि और कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। ट्राई करते हैं उसको भी। तो 4 टाउन सबसे पहले फॉर्म कर देते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओके, एंड वी हैव टू फॉर्म 3 roads such that roads do not form a triangle। तो इस बार हमारा इंटेंशन शुरू से ही होगा कि हम ट्राइंगल ना फॉर्म करें। ठीक है, सो एक केस हो सकता है, वन केस पॉसिबल कुड बी दैट ऑल थ्री रोड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाउन। इफ वी स्टार्ट ऑल थ्री रोड्स फ्रॉम द सेम टाउन, देन वी आर श्योर, एब्सोल्युटली श्योर कि वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि ट्राइंगल में ऑल थ्री लाइन्स डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इजंट इट सो? तो फर्स्ट केस कुड बी all three roads start from same town, सेम टाउन। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ए को सेलेक्ट किया, तो फ्रॉम ए कितने वेज हो सकते हैं? वी कैन कनेक्ट ए बी, ए डी एंड ए सी। तो ऐसा एक ही वे पॉसिबल है टू कनेक्ट थ्री रोड्स, टू मेक थ्री रोड्स फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट, क्योंकि बाकी बचे हुए तीनों पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ए बी, ए सी, ए डी। और टोटल ऐसे कितने केसेस होंगे? इधर यू विल बी सेलेक्टिंग ए और बी और सी और डी, 4 into 1, क्योंकि तरीका तो एक ही पॉसिबल है, तो 4 वेज आर पॉसिबल इफ ऑल थ्री रोड्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाउन। तो पहला केस तो हमने एग्जॉस्ट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस, 2 roads start from same town। ओके, अब क्योंकि 4 ही टाउन्स टोटल है, तो 1 रोड स्टार्ट फ्रॉम सेम टाउन से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई ना कोई टाउन तो ऐसा होगा जहां से कि 2 रोड्स हमारी पास हो रही होंगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा विल बी बेसिकली, टोटल केसेस हमारे यही 2 केसेस पॉसिबल होंगे, इधर ऑल 3 रोड्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाउन और 2 रोड्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द टाउन्स। ओके, सो ए से अगर हम 2 रोड सेलेक्ट करते हैं, सो इधर विल बी सेलेक्टिंग ए डी एंड ए बी, और ए डी एंड ए सी, और ए सी एंड ए डी, सॉरी ए सी एंड ए बी। तो कितने वेज होंगे? हमें 3 रोड्स टोटल बना सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए, सो आउट ऑफ दीज 3 वी हैव टू सेलेक्ट 2, तो 3C2 वेज आर पॉसिबल। ठीक है, 3C2 वेज आर पॉसिबल। इधर विल बी सेलेक्टिंग ए बी एंड ए डी, और ए बी एंड ए सी, और ए बी ए सी एंड ए डी। ठीक है, 3 केसेस पॉसिबल है, 3C2 वेज आर पॉसिबल। अब इनमें से 2 रोड्स हमने फॉर्म कर लिए, अब थर्ड रोड हमें फॉर्म करना है। तो थर्ड रोड कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है? इट कैन नॉट बी बी डी फॉर श्योर, इट कैन बी डी सी, चलेगा, इट कैन बी बी सी, ये भी चलेगा। ठीक है, सो अब कितने वेज पॉसिबल है? देयर आर 2 वेज पॉसिबल फॉर दिस, 3C2
into 2. Is that clear? ठीक है, बट अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, कि देखो इफ वी फॉर्म्ड डीसी लेटस से, भाई इनमें से कोई एक केस तो होगा, लेटस से वी फॉर्म डीसी, 3 रोड्स हो गए, ए बी ए सी, ए बी ए डी एंड डी सी। तो क्या हुआ, पॉइंट ए से भी, टाउन ए से भी देर आर 2 रोड्स, और टाउन डी से भी वी हैव 2 रोड्स, यानी कि देर आर 2 टाउन्स विद 2 रोड्स, इजंट इट सो? तो 2 टाउन्स हमारे पास 2 रोड्स के, तो डबल काउंटिंग हो रहा है यहाँ पे इफेक्टिवली, ठीक है, कि ऐसे केसेस जो हमारे बन गए 3C2 into 2, ये हमने पॉइंट ए के लिए काउंट किया है, और क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए काउंट करना है मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, बट हमेशा ही ध्यान देना है कि इफ वी सेलेक्टेड डीसी फॉर एग्जांपल, देन टाउन ए हैज 2 रूट्स पासिंग फ्रॉम इट, टाउन डी ऑल्सो हैज 2 रूट्स पासिंग फ्रॉम इट। अगर डीसी की बजाय हमने लेटर से बीसी को सेलेक्ट किया होता तब भी यही सेम स्टोरी होती, तब टाउन बी होता है ऐसा, जहां से कि 2 रोड्स पास हो रही होती, बट इन एनी केस, इन सेकंड केस विल ऑलवेज बी हैविंग 2 टाउन्स विद 2 रोड्स, इजंट इट सो? दैट इज फॉर श्योर। तो डिवाइड बाई 2 अल्टीमेटली करना पड़ेगा, बिकॉज इन ऑल सच केसेस डबल काउंटिंग हो रहा है। तो 4 into 3 into 2 by 2, which is equal to 12 ways are possible in second case. So 4 ways in the first case, 12 in the second case, total will be equal to 60. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, टोटल हमारा विल बी इक्वल टू 60। ओके, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो इन बातों को? कमेंट में एक बार मेंशन करना कि हाँ ये बात समझ में आई, और फिर भी अगर कहीं पे डाउट रहता है इस क्वेश्चन में तो भी कमेंट में मेंशन करना कि क्या चीज़ समझ में नहीं है, या किसी भी क्वेश्चन में। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया इस सेशन में वो सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू इट। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।